गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत है। मैं शक्ति सिंह सीआरसी सुंदरनगर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और वेबिनार को शुरू करने से पहले हम हमेशा कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी पार्टिसिपेंट से कि प्लीज़ अपने अपने जो माइक है उसको म्यूट रखें, ताकि आप हमारे जो प्रोग्राम्स को अच्छे से सुन सकें और हमारे प्रोग्राम में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। और साथ में बहुत बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। प्लीज़ स्क्रीन शेयर करने से बचें। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं अब आमंत्रित करता हूँ आज के प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर मैडम के बिन अथॉरिटी। मैम, कैन यू हेयर मी? मैम, आई थिंक योर माइक इज म्यूट। अनम्यूट कीजिए मैम प्लीज। या मैम। Will now? Yeah. या मैम, ओवर टू यू मैम, प्लीज। Yeah. Good morning to all the participants and welcome to the webinar. जैसे कि आप लोग जानते हैं आज का वेबिनार का जो टॉपिक है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड रूल्स 2012। इसको शॉर्ट में पॉक्सो एक्ट भी कहते हैं। बच्चे चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन हो या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो, उनका एक राइट है फॉर द सेफ एनवायरनमेंट टू लिव। और बच्चे अपनी निजी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, टीचर्स है, स्ट्रेंजर्स है, कई लोगों के संपर्क में आते हैं क्योंकि उनका एक राइट है सेफ एनवायरनमेंट में रहने का। कई बार ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, आज इस वेबिनार के दौरान जो हमारे की स्पीकर है डॉक्टर जो मोनिका शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनको मैं वेलकम करती हूँ। मोनिका जी वेलकम। जो हमारे की स्पीकर है उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी मैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट में पीएचडी किए हैं और फिलहाल ये निप्सिड में शी इज वर्किंग इन निप्सिड। निप्सिड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। She is currently looking after the child protection in NIPSID. She is also a master trainer for POCSO Act. इन्होंने काफी सारे रिसर्च स्टडीज किया है वुमेन इश्यूज को लेके, जैसे कि वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर, स्टेटस ऑफ द डिवर्स्ड एंड सेपरेटेड वुमेन को लेके। She has also prepared a booklet on sexual harassment of women at workplace Act 2014. So it's my pleasure to introduce her as a key speaker on today's webinar. So good morning, ma'am. Good morning. Monica ji, welcome to the webinar. Thank you so much, ma'am. And I request you to please share the immense knowledge you have on this particular topic. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah, you have the presentation, I think. Pardon, ma'am? You have a presentation. Yes, ma'am. I have presentation. I will share my presentation during the session. Yeah, please. Yeah. Okay, thank you so much, ma'am, for giving this opportunity to interact with the, I think they are special educators or they are working in the field of special children. So thank you for giving me this opportunity, because generally we deal with either with the district child protection units, or sometimes we have trainings for the school teachers on POCSO acts. We have trainings with the child welfare committee, juvenile justice boards, and sometimes we have opportunity to give training to the police, special juvenile police units. Like in first time I am interacting with the persons, those who are working particularly in the field of this special children. So thank you for giving this opportunity. And friends, as you all know that this act is very important, और आप सबने शायद सुना भी होगा इस पॉक्सो एक्ट के बारे में. POCSO is the short form, and we call it the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. क्योंकि बहुत बार जो है बहुत से लोग इसको POSCO कहते हैं. So I would like to share कि हमें इसको
पॉक्सो है, दिस इज पॉक्सो एक्ट 2012. So before starting the important provisions of this POCSO Act, I would like to share with you that why this act was formulated. And as per the Article 15 of our Constitution, a state or government can make separate laws for women and children. So we call these acts which are particularly for the women and children as special acts. So this is one, so POCSO is also one of the special act for children, because this is particularly only for the children. So this is the special act for children. And before the formulation of this act, हम जानते हैं कि government जो है, they always do some studies, they have data, and the basis of that data they formulate laws and they make new programs for women and children. So also in this case of POCSO Act, before making this act, they did one study by this study was done by the Ministry of Women and Child Development in 2007. And this was one of the national level study on child sexual abuse, and the findings of this study were very surprising, because more than 60% of children, they responded that they were sexually. So during इसमें जो था, जो स्टडी की जो फाइंडिंग्स थी मेनली वो थी कि जब बच्चों के रिस्पॉन्सेज पूछे कि उनके साथ कभी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या नहीं, सो दे रिस्पॉन्डेड दैट दे वर सेक्सुअली अब्यूज्ड, कि more than 60% children they responded that they were sexually abused, and the person who abused them was known to them. वो कोई फैमिली मेंबर था, कोई रिलेटिव था, कोई नेबर था, या कोई और पर्सन जो कि बच्चे के नोन था, बच्चे के करीब था बहुत ज्यादा. तो ये एक बहुत ही शॉकिंग फाइंडिंग थी. एंड अनदर फाइंडिंग वाज व्हेन दे कंपेयर द डाटा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कि हम लड़कों में ज्यादा अब्यूज है या गर्ल चाइल्ड का ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज है. सो दे कंपेयर दिस डाटा, एंड द फाइंडिंग वाज कि जो लड़कों का जो नंबर था दैट वाज 2% मोर देन गर्ल्स. क्योंकि जनरली क्या होता है, व्हाट वी डू, कि फैमिली में हम जनरली हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, शायद आप भी ऐसे ही करते होंगे फैमिली में, मैं भी करती हूँ, हमारे अदर फ्रेंड्स भी ऐसे ही करते होंगे. वी गिव मोर प्रोटेक्शन टू गर्ल चाइल्ड, कि गर्ल्स का सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है. तो हम अभी भी फैमिली में क्या करते हैं कि जब भी गर्ल चाइल्ड हमारी बाहर जाते हैं तो हम उसको पूरा देखते हैं, किसके साथ खेल रही है, कितना टाइम बाहर है, उसके साथ कौन खेलने के लिए आता है, उसको यहाँ नहीं जाना है. सो वी डू लाइक दिस. बट इन केस ऑफ बॉयज व्हाट वी डू, कि हम उसको इतना प्रोटेक्शन नहीं देते हैं. हमें ऐसे लगता है कि बॉयज जो है, लड़का अगर लड़का है तो उसका सेक्सुअल अब्यूज नहीं होगा. सो हम वी गिव मोर प्रोटेक्शन टू गर्ल चाइल्ड, और हम बच्चों जो लड़के होते हैं वी इग्नोर them. So in this study it is found that the percentage of boys was 2% more than girls. So on the basis of this finding also, they make this act as gender neutral act. They make this act as gender neutral act. Gender neutral act means कि ये जो act है, this is applicable for both boys and girls. अगर गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज होगा दैट विल बी बुक्ड अंडर पॉक्सो एक्ट, एंड इन केस अगर किसी लड़के के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है देन इट विल बी बुक्ड अंडर पॉक्सो एक्ट. तो चाहे दोनों ही तरह के केसेस हैं वो पॉक्सो के ही अंडर बुक किए जाएंगे, चाहे वो लड़के का केस है या फिर गर्ल चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज है. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस पॉक्सो एक्ट, दैट it is gender neutral act. So friends, now I'm going to share my presentation with you. So this was one of the reason of this finding, जो उसकी findings थी study की, कि एक act formulate हुआ. And another reasons were कि IPC की अगर हम बात करते हैं, Indian Penal Code. So under Indian Penal Code जो है, ऐसे कोई strong provisions नहीं थे कि अगर किसी गर्ल चाइल्ड के साथ या बॉय के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज होता है तो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं था.
देयर वर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द अडल्ट, क्योंकि अडल्ट के केसेस में और एक गर्ल बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज जो होता है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, बच्चे को बहुत साइकोलॉजिकल फिजिकली हार्म होता है बच्चे को इसमें। तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग प्रोविजन नहीं था, एक्यूज पर्सन जो था वो बहुत इजीली वहां से निकल जाता था अंडर दिस आईपीसी प्रोविजन। So this POCSO Act was formulated and came into force so that कि जो भी accused person है उनको एक stringent punishment हो सके अगर वो किसी बच्चे के साथ sexual abuse करते हैं। So now I will share my presentation with you. Ma'am, can you see my presentation? Yeah, ma'am, please. Yeah. Okay. So this is the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. This act was formulated and came into force on 14th November 2012 on Children's Day. So after 14th November 2012 अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस का केस है, इन दैट केस जो है वो सभी पॉक्सो के अंडर ही बुक हुए हैं। So this act, under this particular POCSO Act, what is the definition of the child? The definition of the child is any person who is below the age of 18 years is a child. Means whether it is boy or a girl and he or she is below the age of 18 years, means he or she is a child, और उनके साथ अगर कोई sexual abuse हुआ है, that will be booked under this POCSO Act. Second feature is that this act provides protection to all person who are below the age of 18 years from sexual assault, sexual harassment and pornography. What are these terms? What is sexual assault, what is harassment, what is pornography? That I will discuss in the next slides की इन terms में हाँ क्या क्या चीजें आएंगी और किन के बेसिस पे जो है हम कहेंगे कि yes, this is sexual assault, this is harassment, this is pornography, so that for these different types of offenses the punishment will be different. The next and important feature is that already I have discussed that this act is gender neutral, means this act is applicable for both boys and girls. चाहे लड़का है चाहे लड़की है, below 18 years है, sexual abuse उनके साथ हुआ है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर ही बुक होगा। Now I will discuss what are the offenses. कौन कौन से offenses जो हैं वो एक्ट के अंदर कवर किए गए हैं। So the first is this is the section 5, but I have before this section 5 I will discuss the section 3, that is penetrative sexual assault. Here in section 5 it is aggravated, but under section 3 it is only penetrative sexual assault. See, I will discuss that what is penetrative sexual under section 3. Penetrative sexual is called when a person inserts his private body part in the private body parts of the child to any extent. अगर वो किसी भी हद तक कोई पर्सन जो है बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट इंसर्ट करता है टू एनी एक्सटेंट, मतलब किसी भी हद तक वो इंसर्ट करता है, then we call it as penetrative sexual assault under section 3. So first I'm discussing section 3, penetrative sexual assault. सेकेंड कंडीशन फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कि कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट इंसर्ट ना करके अगर कोई पर्सन अपने कोई अदर चीज लाइक एनी ऑब्जेक्ट और अदर बॉडी पार्ट मींस कोई फिंगर, आपने देखा है कि आपने बहुत बार ऐसे केसेस सुने होंगे कि जहां पे बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में कोई एक्यूज पर्सन जो है कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देता है, मीन्स की कोई बॉटल डाल दिया, कैंडल है, कोई वुड पीस है वो बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट में इंसर्ट कर देना, या फिर फिंगर इंसर्ट करना टू एनी एक्सटेंट,
मीन्स उसने प्राइवेट बॉडी पार्ट तो इंसर्ट नहीं किया, बट उसने कोई अदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है और फिंगर इंसर्ट किया है, देन वी कॉल इट एज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 3. Third condition for penetrative sexual assault is oral sexual assault with the child. कि बच्चे को अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए कहना ओरली, और बच्चे के साथ ओरल सेक्सुअल असॉल्ट करना, या बच्चे को किसी और के साथ ओरल सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए कहना. तो मीन्स कि वो क्या होगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. सो अंडर सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देयर आर थ्री कंडीशन. जब हम कहेंगे कि दिस इज द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद द चाइल्ड, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द पर्सन इंसर्ट प्राइवेट बॉडी पार्ट इन द प्राइवेट बॉडी पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड. सेकंड इज व्हेन, अगर मान लीजिए कि वो कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करता है या फिंगर भी इंसर्ट करता है, देन इट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. थर्ड कंडीशन, अगर वो बच्चे के साथ ओरल सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तब भी वो एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है अंडर सेक्शन 3. और ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इसके लिए जो है पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस पॉक्सो एक्ट. सो आफ्टर सेक्शन 3 देयर इज सेक्शन 5 which you can see on the slide. सेक्शन 5 है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. मैंने सेक्शन 3 में जो डिस्कस किया दैट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, but here you can see the difference in section 3 and 5. there is one more word is added, aggravated. एक और उन्होंने शब्द ऐड कर दिया है, aggravated penetrative sexual assault. मीन्स कि जो सेक्सुअल असॉल्ट मैंने आपके साथ सेक्शन 3 में डिस्कस किया, कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में प्राइवेट बॉडी पार्ट इंसर्ट करता है टू एनी एक्सटेंट, लेकिन वो कब एग्रीवेट करेगा. एग्रीवेट मीन्स द डिग्री ऑफ पनिशमेंट विल बी हाई, मतलब और भी बड़ा ऑफेंस हो जाएगा वो. देयर आर सम कंडीशंस अंडर दिस सेक्शन 5. यहाँ पे ये कुछ सिचुएशंस दी हैं कि इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर सेक्शन 3 पे एप्लीकेबल हो जाएगी तो फिर वो सेक्शन 3 का जो ऑफेंस है वो सेक्शन 5 में आ जाता है. लाइक मैंने जब आपसे कहा कि बच्चे सेक्शन 3 में बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया एक्यूज पर्सन ने, बट एक्यूज पर्सन कौन था. जैसे फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट अथॉरिटी सच एज पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल, पब्लिक सर्वेंट्स और फैमिली मेंबर. अगर इनमें से कोई भी पर्सन बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 3, देन वी कॉल इट एग्रीवेटेड. क्योंकि एग्रीवेटेड मीन्स ये ऑफेंस और बड़ा हो गया, बिकॉज द ऑफेंस इज कमिटेड बाय द पर्सन हु वाज अ पुलिस ऑफिसर, आर्मी का पर्सन था, कोई सिक्योरिटी पर्सन था, पब्लिक सर्वेंट था या फैमिली मेंबर. बिकॉज ये जो जितने भी हम लोगों की बात कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड. लेकिन अगर वही पर्सन बच्चे के साथ ऑफेंस कमिट करेगा, देन वो ऑफेंस और भी बड़ा हो जाएगा, मींस डिग्री ऑफ ऑफेंस विल बी हाई, तो पनिशमेंट और भी ज्यादा होगी. सो सेकंड कंडीशन फॉर एग्रीवेटेड इज कमिटेड by person in management or staff of educational, medical or religious institutions. Means when this penetrative sexual assault school के मैनेजमेंट या स्टाफ का कोई पर्सन बच्चे के साथ करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. मेडिकल मीन्स हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स. थर्ड इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी ऐड किया, क्योंकि ये 3 प्लेसेस ऐसे हैं जहां हम बिना किसी फियर के जाते हैं, हम बिल्कुल एक ट्रस्ट के साथ, एक फेथ के साथ जाते हैं. हम डेली अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हम ये सोचकर स्कूल भेजते हैं बच्चे को कि हम बच्चे के साथ डेली स्कूल तक नहीं जा रहे हैं, उसके साथ स्कूल में जाके नहीं बैठ जाते हैं उसके साथ. लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चे को बस में बिठाया, बच्चे को आगे कोई और हैंडल कर रहा है, बस से क्लासरूम तक, स्कूल में बच्चा फुल डे वहां पे रह रहा है, वहां पे बहुत सारे स्टाफ के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अदर स्टाफ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. बिकॉज वी हैव फेथ, हमें ये मालूम है कि अगर उस स्कूल के या मैनेजमेंट के स्टाफ ने किसी पर्सन को हायर किया है तो वो एक प्रॉपर स्क्रूटनी प्रोसीजर से किया है, और उस पर्सन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो पर्सन बच्चे के साथ ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता है. लेकिन
अनदर कंडीशन इज कि अगर वही पर्सन बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, देन इट विल बी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो एग्रीवेट हो जाएगा अंडर सेक्शन 5 में, क्योंकि ये कंडीशन वहां एप्लीकेबल हो जाएगी एंड द पनिशमेंट विल बी हायर। इसके लिए पनिशमेंट और ज्यादा होगी फॉर एग्रीवेटेड ऑफेंस। सेकेंड मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर बच्चा हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम का किसी स्टाफ ने ऐसा अगर उसके साथ ऑफेंस किया है, देन इट विल बी एन एग्रीवेटेड ऑफेंस। देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी अगर कहीं उसके स्टाफ या मैनेजमेंट ने बच्चे के साथ इस तरह का कोई ऑफेंस किया है, देन इट विल बी अगेन एन एग्रीवेटेड ऑफेंस। थर्ड कंडीशन इज committed by persons in management or staff of jail, remand home, protection home, observation home or any other place of custody or care and protection। कि अगर कोई जेल के स्टाफ, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, जहां पे हमारे बिलो 18 के बच्चे जो कि कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, हम वहां पर उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, वो बच्चा वहां पर रहता है फॉर 3 years, या फिर कोई अदर प्लेस ऑफ केयर एंड कस्टडी, मींस ये सबको कवर कर सकता है। जहां हमारे स्पेशल बच्चे रहते हैं, ये उन इंस्टीट्यूशंस को भी कवर करेगा। जो बच्चे जो ऑर्फन है, जो अगर किसी होम में, चिल्ड्रन होम में रह रहे हैं, उनको भी कवर करेगा। कि अगर वहां कोई ऐसा प्लेस जहां बच्चे को उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमने वहां पर उसको रखा है, लेकिन वहीं अगर बच्चे के साथ स्टाफ या मैनेजमेंट का कोई पर्सन बच्चे के साथ ऑफेंस कमिट करता है, in that case it will be an aggravated penetrative sexual assault। मैं जस्ट एक फीडबैक लेना चाहूंगी, क्या मैं क्लियर हूं आप लोगों को? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Am I clear? Yes, yeah, it is very clear. Okay, It is very clear. Dr. Monica, okay ma'am, okay, thank you। So next is, there are some conditions for aggravated। So next condition for aggravated is gang assault, when the offense is committed by more than one person। अगर एक से ज्यादा अगर पर्सन बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं अंडर सेक्शन 3, देन ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 5 में आकर एग्रीवेटेड, बिकॉज देयर इज वन कंडीशन कि अगर ये गैंग असॉल्ट है और पेनिट्रेटिव है तो हम इसको एग्रीवेटेड ऑफेंस कहेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन ऑफेंस कॉजेज ग्रीवियस हर्ट। ये जो है ये कब क्लियर हो पाएगा, आफ्टर मेडिकल ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चे का मेडिकल होगा और डॉक्टर अगर ये एक रिटर्न में हमें देते हैं कि यस ये जो ऑफेंस बच्चे के साथ हुआ है और इससे बच्चे को एक बहुत ही ज्यादा फिजिकली हार्म हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेडिकल पुलिस कैन डिसाइड कि ये एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट रहेगा या एग्रीवेटेड में आएगा, तो ये एग्रीवेटेड में भी कन्वर्ट हो सकता है। देन ऑफेंस कॉजेज फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी टू द चाइल्ड, मीन्स कि आफ्टर दैट ऑफेंस बच्चा फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो जाता है। In that condition again it will be an aggravated offense and punishment will be higher, क्योंकि बच्चे को ऐसा फिजिकली या मेंटल डिसेबिलिटी हो गई है जिससे उसका नेक्स्ट जो है पूरा फ्यूचर बच्चे का खराब हो रहा है। तो इन दैट कंडीशन जो है जो एक्यूज पर्सन जो है उसके लिए पनिशमेंट भी ज्यादा होगी। When offense is committed taking advantage of child's mental and physical disability, means the child was already mentally or physically disabled and that accused person took the advantage of the disability of the child। उसने बच्चे की डिसेबिलिटी का एडवांटेज लिया, मीन्स कि बच्चा देख नहीं सकता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसके साथ किसने ये ऑफेंस किया। बच्चा मेंटली डिसेबल था, मेंटली डिसेबिलिटी थी उसको, तो उस कंडीशन में बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ, या वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो बच्चे की डिसेबिलिटी की एडवांटेज अगर एक्यूज पर्सन लेता है, इन दैट केस जो है वो एक एग्रीवेटेड ऑफेंस होगा। नेक्स्ट, व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड मोर देन वंस, क्योंकि ये जो कंडीशन है अगर हम देखते हैं अगर बच्चा जहां बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, in that condition there are cases जहां बच्चे के साथ more than once जो है वो offense commit होता है।
क्योंकि बच्चा जो है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्यूज पर्सन, वो दोनों बहुत से केसेस में एक नॉन पर्सन होता है, बच्चा उसके साथ रह रहा होता है, तो देयर आर चांसेस कि बच्चे के साथ जो है एक से ज्यादा बार ऑफेंस होता है. If the offense is more than once, then it will be an aggravated offense. When child is below 12 years of age, जैसे ही पुलिस के पास जो है एक FIR आता है कि बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है अंडर सेक्शन 3, बट पुलिस क्या करेगी, बच्चे का एज के लिए प्रूफ लेगी कि बच्चे की एज क्या है. तो पेरेंट्स जो है जो भी, या बच्चे का जो भी गार्जियन है या बच्चे के साथ कोई पर्सन जो है, वो बच्चे का उसका बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट देंगे. अगर पुलिस ये देखती है कि बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है एंड द चाइल्ड इज बिलो 12 इयर्स ऑफ एज, तो उस केस में फिर वो ऑफेंस सेक्शन 3 में नहीं रहेगा. तो ये इट विल कम अंडर सेक्शन 5, एग्रीवेट हो जाएगा, बिकॉज द एज ऑफ द चाइल्ड इज बिलो 12 इयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट इज व्हेन ऑफेंडर इज रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड, मीन्स कि यहाँ रिलेटिव्स को भी कवर किया है अंडर दिस पोक्सो एक्ट. रिलेटिव मीन्स दोज हु आर इन ब्लड रिलेशन, बच्चे के चाचा है, मामा है, या जो भी उसके ब्लड रिलेशन में है, और वो बच्चे के साथ ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं. इन दैट केस जो है इट विल बी एन एग्रीवेटेड ऑफेंस एंड पनिशमेंट विल बी हायर. Next condition for aggravated is when attempt is also made to murder the child, कि बच्चे के साथ penetrative sexual assault तो किया, but बच्चे को जान से मारने की भी कोशिश की गई. In that case, again it will be an aggravated offense. Next is when offense is committed and child is made to strip or parade naked in public. बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां दो फैमिलीज में गुस्सा है, आपस में लड़ाई झगड़ा है. इन दैट केस क्या होता है कि बच्चे के साथ ऑफेंस कमिट किया, बच्चे के कपड़े उतारकर उसको गांव में घुमाना, कम्युनिटी में घुमाना, अगर इस तरह की एक्टिविटी हुई है आफ्टर दैट ऑफेंस, तो वो फिर एग्रीवेटेड में आ जाएगा. व्हेन कमिटेड बाय पर्सन हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड of having committed such an offense either under this law or any other law, means कि जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट FIR लॉन्च हुई है, पुलिस क्या करेगी, उसकी एक प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेगी कि इसने पहले इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट किया है. अगर उसकी इस तरह की हिस्ट्री है आइदर अंडर पॉक्सो और अंडर IPC, हो सकता है कि उसने पॉक्सो में पहले इस तरह का ऑफेंस किया हो, या फिर पॉक्सो में ना हो कि उसने IPC के किसी प्रोविजन में इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट किया हो. तो इन दैट बिकॉज ही हैज द हिस्ट्री ऑफ कमिटिंग सच सेक्सुअल असॉल्ट, तो अब अगर उसने इस तरह से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है तो फिर वो एग्रीवेटेड में रहेगा. सो देयर आर 2 more conditions which are in yellow color. These are the amendments in the act. बिकॉज द एक्ट जो था वो 2012 में आया था एंड रिसेंटली इन अगस्त 2019 जो है एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं. सो दे हैव एडेड दीज 2 more कंडीशंस इसके लिए, एग्रीवेटेड के लिए. प्रीवियसली ये 2 कंडीशंस एक्ट में नहीं थी, बट आफ्टर अगस्त 2019 नाउ दीज 2 more कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर एग्रीवेटेड ऑफेंस. मीन्स फर्स्ट कंडीशन जो है, जो अमेंडमेंट हुई है एक्ट में, जिसको हम संशोधन कहते हैं कि एक्ट में किया गया है, असॉल्ट रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ चाइल्ड. मीन्स कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तब भी वो एग्रीवेटेड में होगा. प्रीवियसली जो था एक्ट में इट वाज ओनली अटेम्प्ट इज आल्सो मेड टू मर्डर द चाइल्ड, बट अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारे केसेस जो हैं हम टीवी में, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और बच्चे को मर्डर भी कर देते हैं, बच्चे को जान से मार देते हैं. तो यहाँ पर ये कंडीशन ऐड की है ऑन द बेसिस ऑफ सच केसेस कि इस तरह के केसेस इतने ज्यादा हैं कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है असॉल्ट के बाद, तो उसमें केस में उसको क्या पनिशमेंट रहेगी. सो सच केसेस विल बी एग्रीवेटेड केसेस, और उस केस में फिर पनिशमेंट जो है वो ज्यादा है. That I will discuss in the next slide. Assault committed during a natural calamity or in any similar situations of violence. ये एक दूसरा अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है.
बिकॉज ऐसी कंडीशंस आती हैं कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इन दैट केस क्या होता है कि बच्चे की पूरी फैमिली जो है फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है बच्चे की फैमिली, बच्चे को कोई फैमिली सपोर्ट नहीं रहता है, बच्चा अकेला है। और एक्यूज्ड पर्सन क्या करता है ऐसी कंडीशंस में, जो ट्रैफिकर्स होते हैं या इस तरह के एक्यूज पर्सन होते हैं, वो बच्चे की इस कंडीशन का एडवांटेज लेते हैं एंड दे कमिट ऑफेंस विद द चाइल्ड। अगर वो बच्चे के साथ ऐसी कंडीशन में एडवांटेज लेते हुए बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द एग्रीवेटेड condition. So these are the conditions which are under the aggravated conditions कि ये condition, अगर कोई भी condition इनमें से कोई भी condition अगर section 3 पे applicable हो जाती है then it will be aggravated penetrative sexual assault and punishment will be high. Next offense is sexual assault. Now penetrative word is removed. पहले हमने section 3 में बात की थी penetrative sexual assault under section 7 under section 3. Now it is only sexual assault, there is no penetration. So under section 7 हम तब कहेंगे कि ये एक sexual assault है, एक ये लैंगिक अपराध है। sexual assault हम तब कहेंगे because it includes the act of touching the private body parts of the child or to make the child to do so with him or with any other person विदाउट पेनिट्रेशन। यहाँ पे देखिए इंसर्ट नहीं कर रहा है वो, बट बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करना, बच्चे को अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट टच करने के लिए कहना, या बच्चे को किसी और के साथ इस तरह से कोई एक्टिविटी करने के लिए कहना, देन वी कॉल इट सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए यहाँ पे एक फीमेल भी बुक हो सकती है अगर वो किसी बच्चे के साथ इस तरह का ऑफेंस कमिट कर रही है। तो this is sexual assault under section 7. I think it is clear difference between section 3 and section 7. वहां पे penetration word था और यहाँ पे penetrative word जो है वो remove हो गया है। Here in this section 7 only touching is there. यहाँ पे सिर्फ वो touch करता है accused person. Next section 9. Aggravated sexual assault, section 9. Aggravated sexual assault means again this sexual assault will be aggravated. यही sexual assault जो है फिर से aggravate हो जाएगा, means punishment और ज्यादा हो जाएगी. So I will not discuss all the conditions because the conditions will be same as I have discussed in section 7. So I'm not going to repeat all the conditions. मैं सिर्फ वही conditions आपके साथ दो discuss करूंगी जो कि अभी amendment में add किए गए हैं. Assault committed during a natural calamity. अगर natural calamity के time पर बच्चे के साथ कोई sexual assault होता है then it will be an aggravated sexual assault और punishment ज्यादा रहेगा. Second condition is administering or help in administering any hormone or any chemical substance to a child for the purpose of attaining early sexual maturity. और ये जो condition है हम देखते हैं कि mostly ये हमें वहां देखने को मिलती है जहां trafficking के cases रहते हैं कि गर्ल चाइल्ड को जो है इस तरह से कुछ इंजेक्शंस देकर जो है हार्मोनल इंजेक्शंस देकर जो है एक अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए जो है दिए जाते हैं. अगर इस तरह से कोई भी केमिकल सब्सटेंस या हार्मोनल इंजेक्शन जो अगर बच्चे को दिया गया है इन दैट कंडीशन जो है that will be covered under aggravated sexual assault section 9. So these are the two amendments under this POCSO Act during 2019. और ये अभी अगर इस तरह का कोई भी offense होता है तो वो aggravated sexual assault में cover होगा. Otherwise rest of the aggravated conditions are same जो कि हमने अभी just section 5 में discuss की थी. Next is sexual harassment section 11. से अब यहाँ पे जो है वो असॉल्ट नहीं है. नाउ इट इज ओनली सेक्सुअल हरासमेंट. अब सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट में हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा? फर्स्ट कंडीशन इज देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम. बच्चे में और एक एक्यूज्ड पर्सन में आपस में फिजिकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट दैट एक्यूज्ड पर्सन harass the child with sexual intention. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्टिविटी हुई है
उसमें एक्यूज्ड की अगर सेक्सुअल इंटेंशन थी, तो उस कंडीशन में जो है वो एक सेक्सुअल इंटेंशन के साथ बच्चे को कमेंट पास कर रहा है, द पर्सन इज मेकिंग साउंड्स, मेकिंग जेस्चर्स, shows some pornographic material whether it is electronic or printed, और वो इतने डिस्टेंस पे बच्चे को दिखा रहा है कि बच्चा इजिली समझ सकता है कि उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल में क्या एक्टिविटी है। अगर वो इन सब एक्टिविटीज से एक सेक्सुअल इंटेंशन के साथ जो है बच्चे को इस तरह से कोई भी एक्टिविटी हुई है, दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 11 सेक्सुअल हरासमेंट। तो हम कहेंगे दिस इज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द चाइल्ड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक्यूज्ड और बच्चे में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जहां फिजिकल टच होगा, फिजिकल टचिंग की बात होगी, तो दैट विल बी सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट होगा। लेकिन देयर इज जहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और बच्चे के साथ कुछ इस तरह की एक्टिविटी की है, बच्चे को सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। Next is use of child for pornographic purposes. Section 13 of the POCSO Act means using a child in pornographic material, जिसमें हम कहते हैं कि this is child pornographic material। एक pornographic material है जिसमें adults हैं, वहां पे किसी बच्चे को बच्चा नहीं दिख रहा है, तो हम उसको सेक्शन 13 में कवर नहीं कर सकते हैं। बट उसी एक पोर्नोग्राफिक मटेरियल में अगर किसी बच्चे को किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में यूज किया गया है, वेदर इट इज फॉर अ प्रोग्राम, एडवर्टीजमेंट है जिसमें बच्चे के सेक्सुअल पार्ट्स को फोकस किया जा रहा है, इंटरनेट पे कोई मटेरियल अवेलेबल है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड फॉर्म में है, लेकिन वहां पर बच्चे को यूज किया गया है उस एक्टिविटी में, तो जो पर्सन ने बच्चे को यूज किया है दैट पर्सन विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 13 use of child for pornographic purposes. Now these are the punishments under this POCSO Act। जो भी मैंने ऑफेंसेस आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी कि जो भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए जो है पनिशमेंट क्या है। So here you can see first column is offense, second is POCSO 2012 and amendment under Act 2019। जो पॉक्सो 2012 है वो है जब एक्ट जो है फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया है, तो एक्ट में क्या पनिशमेंट थी। सेकंड जो थर्ड कॉलम जो है उसमें मैंने फोकस किया है कि अभी जो रिसेंटली अगस्त 2019 में एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो अब पनिशमेंट इंक्रीज हो गई है। सो मैं दोनों को इसमें मैंने कॉलम्स में लिया सो दैट कि हम देख पाए कि कितना इसमें इंक्रीज हुआ और क्या डिफरेंस एक्ट की पनिशमेंट्स में है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ दिस पॉक्सो एक्ट। So first is penetrative sexual assault, जो क्या था section 3, but the punishment is given under section 4। For section 3 punishment is given under section 4। एक पॉक्सो एक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो भी ऑफेंसेस हैं वो ऑड नंबर्स है और जो पनिशमेंट है रिलेवेंट सेक्शन के लिए दैट इज इन इवन सेक्शंस। सो सेक्शन 3, फॉर सेक्शन 3 द पनिशमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 4। जब ये एक्ट फर्स्ट टाइम आया था 2012 में, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो है द मिनिमम पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाज 7 years टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि, बट मिनिमम पनिशमेंट वाज 7 years। बट नाउ अंडर दिस आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट POCSO Act in 2019, now the punishment is increased। Now the minimum punishment is 10 years। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उस केस में जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो अपराधी है, बच्चे जिसने अपराध किया है, ऑफेंस कमिट किया है, द मिनिमम पनिशमेंट इज 10 years। बट इन केस चाइल्ड इज बिलो 16 years, अगर मान लीजिए कि बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है और उसका एज प्रूफ जब आया है तो उन्होंने देखा कि द चाइल्ड इज बिलो 16 years ऑफ एज, अगर वो 16 years से कम था देन द मिनिमम पनिशमेंट इज 20 years। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पहले जो था प्रीवियसली 7 years था,
बट अब पनिशमेंट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस इंक्रीज कर रहे हैं. सो पनिशमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज, सो दैट कि हम कहीं पे इसको कम कर पाए. तो मिनिमम पनिशमेंट इज 10 years, and if the child is below 16 years, then minimum punishment is 20 years, and maximum punishment is the same, life imprisonment for accused person. Next is aggravated penetrative sexual assault under section 6. मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि एग्रीवेटेड होगा तो पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और एग्रीवेटेड के लिए मैंने जो है आपके साथ सारी कंडीशंस डिस्कस की हैं. सो अंडर पॉक्सो 2012 जो था, पनिशमेंट वाज मिनिमम 10 years to imprisonment for life, but now under this amendment act 2019, minimum punishment for aggravated penetrative sexual assault is 20 years, and maximum is life imprisonment or death penalty is also there. In 2012 act there was no death penalty for the accused person, लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, अगर कोर्ट अगर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो उस केस में उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट इन दिस एक्ट. नेक्स्ट इज सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें अब पेनिट्रेशन नहीं है, इट इज ओनली सेक्सुअल असॉल्ट. तो जो 2012 हमारा एक्ट था, द पनिशमेंट वाज 3 years to 5 years, और अभी भी ये सेम है अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट, 3 years to 5 years. नेक्स्ट इज एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, मीन्स यही हमारा एग्रीवेटेड असॉल्ट अंडर सेक्शन 8 जो है, जब ये एग्रीवेट हो जाता है देन द पनिशमेंट इज हाई, 5 years to 7 years, और ये अभी भी सेम है अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट 2019, 5 years to 7 years. नेक्स्ट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द चाइल्ड, मीन्स कि बच्चे को कोई फिजिकल टच नहीं है बट द पर्सन इज हैरेसिंग द चाइल्ड सेक्सुअली, सो 3 years पनिशमेंट इज देयर. यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, अगर बच्चे को सेक्सुअल एक पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाने में यूज किया गया है, इन दैट कंडीशन द पनिशमेंट इज सेम अंडर अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो. फॉर फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार अगर इस तरह का ऑफेंस करके पकड़ा गया है पर्सन, देन द पनिशमेंट इज 5 years, एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, मीन्स कुछ हैबिचुअल वो ऑफेंडर्स होते हैं, एक बार ऑफेंस किया, फिर जेल से बाहर आए, फिर जाकर जो है वहां पर फिर वही ऑफेंस कमिट किया, तो सेकंड टाइम पर जो अगर वो पकड़ा जाता है फॉर द सेम ऑफेंस, देन द पनिशमेंट इज 7 years. और ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पहले क्या होता था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स कि 14 years पनिशमेंट है, 14 years जो है कंप्लीट करके आएंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज ओवर. लेकिन अंडर जो है अभी जो है ये पॉक्सो एक्ट में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मीन्स की टिल नेचुरल डेथ, जब तक उसकी वहीं जेल में नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है तब तक जो है वो वहीं पर ही जेल में ही रहेगा. अब यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है कि 14 years हो गए या 20 years हो गए तो आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज ओवर. नो, टिल नेचुरल डेथ जो है वो पर्सन वहां पर उसको पनिशमेंट रहेगा. Now punishment for storing pornographic material involving a child for commercial purposes, 3 years punishment is there. Means कि मान लीजिए एक पर्सन ने तो वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल डेवलप किया, ठीक है, सेकंड पर्सन होगा जो उसको स्टोर करेगा अपने पास फॉर कमर्शियल पर्पसेस, बट storing such pornographic material is also an offense under this POCSO Act section 15, and for storing such material the punishment is 3 years. 3 साल की सजा का जो है यहाँ पे प्रोविजन है फॉर स्टोरिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड. यहाँ अडल्ट मटेरियल की बात नहीं हो रही है, हम ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल की बात कर रहे हैं जिसमें एक बच्चे को इन्वॉल्व किया है एंड द पर्सन हैज स्टोर्ड दैट मटेरियल फॉर कमर्शियल पर्पसेस. और अगर वो पर्सन
failing to destroy, delete or report pornographic material involving a child. उस पर्सन ने अपने पास स्टोर करके रखा है, ना तो उसने इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, डिलीट भी नहीं किया और पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट भी नहीं किया, तो इन दैट केस जो है द पनिशमेंट इज 3 years. और या फिर वो उसको कहीं डिस्प्ले कर रहा है और द पर्सन ऑफेंडर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट मटेरियल और नॉट रिपोर्टिंग द मटेरियल टू पुलिस स्टेशन, देन द पनिशमेंट इज 3 years. Another important feature of this POCSO Act is burden of proof shifted on accused in case of serious offenses. These section 3, 5, 7 and 9, जिसमें हम बात कर रहे थे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्शन 5, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 एंड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 9. तो ये जो 4 ऑफेंसेस हैं, दीज आर द सीरियस ऑफेंसेस अंडर दिस पॉक्सो एक्ट. एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, कि बर्डन ऑफ प्रूफ की किसको प्रूव करना है कि ये ऑफेंस हुआ है. आईपीसी में अगर आप देखेंगे तो जो विक्टिम है तो वही प्रूव करता है कि यस मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, ये उसका एविडेंसेस ली जाते हैं, वो प्रूफ देता है कि इस तरह से उसके साथ ऑफेंस हुआ है. बट अंडर दिस पॉक्सो एक्ट जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज टोटली शिफ्टेड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन, कि जिसने ये ऑफेंस किया है उसी को प्रूव करना है कि उसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है. जो भी प्रूफ होगा वही पर्सन ला के देगा. देयर इज नो बर्डन ऑन द चिल्ड्रन, बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि तुम्हें ये प्रूव करना है कि तुम्हारे साथ ये ऑफेंस हुआ है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पॉक्सो एक्ट. नाउ अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट. अबेटमेंट मीन्स किसी भी ऑफेंस को होने के लिए उकसाना. तो अंडर पॉक्सो एक्ट जो है, अबेटमेंट इज ट्रीटेड विद द सेम ग्रेविटी एज कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस. इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है कि जब ऑफेंस होता है किसी भी बच्चे के साथ, तो 3-4 पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऑफेंस एक ही ने कमिट किया है. मान लीजिए 4 पर्सन है, उनमें से बच्चे के साथ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो एक ही पर्सन ने किया है. जो उसके जो साथ जो 3 उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प किया. मीन्स की जैसे बच्चे की इंफॉर्मेशन शेयर करी कि बच्चा कौन से स्कूल में है, बच्चा स्कूल से कब आता है, कैसे आता है, बच्चे के फैमिली घर में कौन कौन रहता है, बच्चा अकेला कब होता है, या पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा था तो वो देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है. तो ये सब अबेटमेंट के अंडर आता है. इवन की ट्रैफिकिंग जो है दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस अबेटमेंट. तो क्योंकि वहां पर भी क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई पर्सन जो है हेल्प कर रहा है फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस. तो ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट जो है, तो पहले क्या होता था कि जिसने ऑफेंस किया है पनिशमेंट उसी को होगा, जो उसके 3 फ्रेंड साथ में उन्होंने हेल्प किया है वो छूट जाते थे. लेकिन अंडर पॉक्सो एक्ट क्या है कि अब पनिशमेंट जो 4 लोग इन्वॉल्व थे, वेदर उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, बट द पनिशमेंट विल बी सेम फॉर ऑल. सबको एक जैसी पनिशमेंट जो है वो रहेगी, बिकॉज उनकी हेल्प से ये ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है. Next is section 18. Attempt to commit an offense is also penalized up to half the punishment prescribed for that offense. Under section 18 जो है कि अगर कोई पर्सन बच्चे के साथ अटेम्प्ट भी करता है, चाहे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन उसने अटेम्प्ट भी किया है, फॉर दैट केस जो अगर मान लो उसने अंडर सेक्शन 3 the person tried to attempt penetrative sexual assault, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट द मिनिमम पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज 10 years. तो उस केस में उसकी हाफ पनिशमेंट जो है उसको रहेगी फॉर अटेम्प्टिंग दैट ऑफेंस. अटेम्प्ट करने के लिए भी हाफ पनिशमेंट जो है उसके लिए रहेगा. सो दिस इज द अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट अंडर द पॉक्सो एक्ट. नाउ द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 19. The procedure for reporting the cases, the first thing is to report the offense to the special juvenile police unit or the local police. Special police unit, special juvenile police unit जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलती हैं. They are already there, but अगर हमने किसी कॉमन पर्सन को, किसी कॉमन मैन को अगर हम जाके बता रहे हैं कि कहाँ पे केस को रिपोर्ट करना है, उनको जो भी नियरेस्ट उनका लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर उनको रिपोर्ट करना है.
In case child is in need of care and protection, means the child is without any parental support, बच्चे के कोई parents नहीं है, there is no guardian, child is orphan and without any support. In that case, it is the duty of the police to provide all the care and support to the child within 24 hours of the report. वो 24 घंटे के अंदर बच्चे को अगर रहने के लिए प्लेस चाहिएगा तो वो प्रोवाइड करेगा, मेडिकल करवाएगा, बच्चे का खाने का है, जो भी बच्चे को केयर चाहिए है विदिन 24 आवर जो है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू प्रोवाइड द all the services to the child. Third condition is the local police to report the matter to the child welfare committees and special court within the 24 hours. You all must be aware of these child welfare committees. These are constituted in all districts. सभी districts में जो है ये constitute की गई हैं child welfare committees and special courts are there. So it is the responsibility of police कि अगर कोई भी पोक्सो का केस आ रहा है तो within 24 hours they have to report the matter to the child welfare committee concerned जो है and special court also. Next is failure to report. Commission of offence is punishable with imprisonment of 6 months or with fine or both. Means कि अगर किसी पर्सन के नॉलेज में ये है कि बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है बट द पर्सन इज नॉट रिपोर्टिंग द मैटर एट द पुलिस स्टेशन, इन दैट कंडीशन जो है उस पर्सन को भी 6 months की पनिशमेंट और फाइन या फिर दोनों हो सकता है, बिकॉज अंडर दिस पॉक्सो एक्ट रिपोर्टिंग ऑफ केसेस इज मैंडेटरी. अगर किसी भी पर्सन के नॉलेज में ये चीज है कि बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है, बच्चे के साथ ऑफेंस हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू रिपोर्ट द ऑफेंस एट पुलिस स्टेशन. अगर वो नहीं करता है पुलिस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां फैमिली मेंबर ही बच्चे के साथ ऑफेंस कर रहा है तो पेरेंट्स जो है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं पुलिस स्टेशन पे जाकर, क्योंकि फैमिली इमेज खराब होगा, सोसाइटी में ये होगा, तो इस वजह से वो रिपोर्ट नहीं करते हैं. इसीलिए ये क्लॉज यहाँ पर ऐड किया गया है कि अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है इन दैट कंडीशन देयर इज प्रोविजन ऑफ 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और बोथ. Failure to record an offence also punishable with imprisonment of 6 months or with fine or both. Failure to record means हम पुलिस स्टेशन पे जब जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए and that police officer is not recording our complaint, तो अगर हम उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं. अगर वो रिपोर्ट नहीं लिख रहा है इन दैट केस जो है उसके लिए भी पनिशमेंट है for 6 months और fine और both. तो equal responsibility is given on both sides की रिपोर्ट करना भी जरूरी है and रिकॉर्ड करना is also mandatory. So दोनों तरफ जो है equal responsibility दी है. मोनिका एक एग्जांपल दे दूं? Yes sir. स्पेशली क्योंकि ज्यादातर ग्रुप में स्पेशल एजुकेटर हैं, तो ये जो आपने बताया है ना फेलियर टू रिपोर्ट, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे ने इशारे से, क्योंकि स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वर्बल ही कहें. जी सर. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने चाहे किसी भी भाषा में, चाहे इशारे से रो के क्लास टीचर को या उसके आसपास किसी भी ऐसे प्रोफेशनल्स को जो स्पेशल एजुकेटर है बताने का कोशिश किया है, और लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन में अगर ये बात सामने आती है कि बच्चे ने पुलिस स्टेशन तक ये बात पहुंचने से पहले अपने टीचर को, स्पेशल टीचर को या आया को या किसी को भी बताई थी पहले, तो वो जो हमारा प्रोफेशनल है, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, टीचर, आया, कोई भी, वो 6 महीने के पनिशमेंट का अंडर आईपीसी हकदार. राइट सर. तो इन दैट केस वो इस चीज को मैं एलोबरेट करना चाह रहा था यहाँ पर कि जो क्लास टीचर्स हैं किसी भी तरह से, चाहे वो क्लिनिकल सर्विस से जुड़े हुए हैं या स्पेशल स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी लेवल ऑफ क्वारी में अगर ये पता लगता है कि बच्चे ने
कोर्ट में आने से पहले इस बात को किसी को भी बताया है तो उनके ऊपर भी 6 महीने तक की सजा का आईपीसी में प्रोविजन रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेरी मैं पूछना चाहूंगी यस मैम स्पीकर से कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स है या स्पेशल स्कूल्स है या इंस्टीट्यूट्स है, रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कमिटीज बनाते हैं अपनी लेवल पे, क्या ये सही है या गलत है? ये फॉर इंक्वायरी मैम, फॉर इंक्वायरी है या फॉर डीलिंग सच काइंड ऑफ केसेस जो इंस्टीट्यूट के no no ma'am, no one is authorized to deal such cases. They can make committees कि हाँ how to prevent, they can committees कि हाँ कुछ कमेटी बना के आप you are ensuring कि बच्चे का कोई sexual abuse नहीं हो रहा है, लेकिन abuse हुआ है, no one is authorized कि कोई इन केसेस को अपने कमेटी के लेवल पे डील कर सके। हालांकि पॉक्सो एक्ट में कहीं नहीं है कि इस तरह डील कर सकते हैं। थैंक यू। यस मैम, यहाँ पे मैम कहीं अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ मैम, कहीं पे भी कमेटी की बात नहीं है। कमेटीज जैसे स्कूल्स में कमेटी फॉर्म हुई है मैम, जो ऑलरेडी दूसरे स्कूल्स भी हैं हमारे, दे कॉन्स्टिट्यूट कमेटीज कि वो कैसे बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, कैसे अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम अवेयर करना है, वो इस टाइप की कमेटीज हो सकती हैं, बट नो वन कैन डील सच केसेस एट स्कूल लेवल और सच केसेस मैम। इसका मतलब ये है कि प्रिवेंशन को या ओरिएंटेशन को कर सकते हैं, ना कि उन केसेस को डील करने के लिए। यस मैम, डील कोई नहीं कर सकता है, हमें इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में उसको रिपोर्ट करना है मैम। ओके अगर इंस्टीट्यूट्स अगर कोई डील करने के ऐसे कमिटीज बनाते हैं उन केसेस को डील करने के लिए, उसमें क्या करना चाहिए इमीडिएटली? मैम अगर कोई ऐसे केसेस को डील कर रहा है और किसी भी पर्सन के नॉलेज में आता है, तो इमीडिएटली पहले तो हमें ये उनको अवेयर करना है कि इट इज रॉन्ग, कि मतलब कि आप ऐसे डील नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार कैसे होता है कि ठीक है, मान लीजिए हम ये मान के चलें कि वो अवेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन बताने के बावजूद भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में उसको इन्फॉर्म करना है कि इस तरह का ऑफेंस हुआ है, एंड दैट कमिटी इज डीलिंग सच केसेस मैम। ओके, थैंक यू, प्लीज डू कंटिन्यू। ओके, next is failure to report by a person who is in charge of any company or an institution in respect of offense committed by subordinate under his control, also punishable with imprisonment of 1 year and fine. मीन्स कि जो अगर कोई स्कूल है, मीन्स मान लिया आपका कोई स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, और वहां के आपके हेड हैं, उनके नॉलेज में ये है कि उनके सबऑर्डिनेट ने बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है, बट दैट हेड ऑफ द स्कूल और इंचार्ज जो है इज नॉट रिपोर्टिंग दैट ऑफेंस एट पुलिस स्टेशन, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया है कि मेरे स्कूल में मेरे सबऑर्डिनेट ने बच्चे के साथ ही ऑफेंस किया है, इन दैट केस जो है इंचार्ज के लिए जो है पनिशमेंट इज मोर, मीन्स की पनिशमेंट इज 1 year। अर्लियर जो मैंने आपसे डिस्कस किया दैट इज 6 months, बट अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या इंचार्ज ऑफ एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन अगर रिपोर्ट नहीं करता है, इन दैट केस पनिशमेंट इज 1 year एंड फाइन। दैट कोर्ट विल डिसाइड, फाइन इज नॉट फिक्स्ड अमाउंट, दैट कोर्ट विल डिसाइड कि कितना फाइन का अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट इज फेलियर टू रिपोर्ट, नॉट पनिशेबल इन केस ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के लिए कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है अंडर दिस पॉक्सो एक्ट कि आपने अपने केस, आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, आपने आके पुलिस स्टेशन पे उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया। नेक्स्ट इज false complaint against any person with malicious intent punishable with imprisonment of 6 months or with fine or both, क्योंकि आपने देखा है कि हर एक्ट का मिसयूज जरूर होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एक एलिगेशन, झूठी कंप्लेंट कर देता है कि इसने बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है, और ड्यूरिंग इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में ये मिलता है कि इट वाज अ फॉल्स कंप्लेंट, तो उस केस में उस पर्सन को 6 month की पनिशमेंट या फाइन या बोथ दोनों हो सकता है कि उसने एक झूठी कंप्लेंट की थी। नो सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ,
किसी भी अगर कोई भी पर्सन कुछ अच्छा सोच के पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट लिखवा रहा है, लेकिन इंक्वायरी में पुलिस को वैसा कुछ नहीं मिलता है, इन दैट केस जो उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एक उसने गुड फेथ में जो है पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी। मीडिया नॉट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट व्हेन परमिटेड बाय द स्पेशल कोर्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे मीडिया, लेकिन हम मोस्टली क्या देखते हैं कि मीडिया बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है। नेम, बच्चे आइडेंटिटी में एक्ट क्या इंक्लूड करता है? नेम ऑफ द चाइल्ड, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो कि बच्चे की आइडेंटिटी लीक कर सकता हो। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मीडिया डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर मीडिया ने डिस्प्ले किया है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या उसके पास स्पेशल कोर्ट का परमिशन है बच्चे की आइडेंटिटी लीक करने का। अगर उसके पास परमिशन है देन इट इज ओके, बट अगर उसके पास स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं है तो हम मीडिया के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं अंडर दिस पॉक्सो एक्ट। एंड एज पर एक्ट जो है there is provision of punishment not less than 6 months and which may extend to 1 year again for media। अगर हम उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं तो जिस भी पर्सन ने बच्चे की आइडेंटिटी लीक की है उसको ये पनिशमेंट हो सकता है। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर सेक्शन 24। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर जो है दैट इज वेरी चाइल्ड फ्रेंडली, सो दैट कि बच्चे को किसी भी लेवल पर जो है हरासमेंट फील ना हो। सो फर्स्ट कंडीशन फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज रिकॉर्डिंग एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की स्टेट। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जहां अवेयरनेस नहीं है पुलिस बार बार बच्चे को और उसके पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन पे बुलाती है फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, बट ऐसा नहीं है। बच्चे की स्टेटमेंट जो है पुलिस उसके घर पर ही रिकॉर्ड करेगी। सेकेंड कंडीशन जो है रिकॉर्डिंग बाय विमेन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मीन्स की प्रेफरेबली द स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन सब इंस्पेक्टर, जो है वही बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर पाएगी, लेकिन सब इंस्पेक्टर के बिलो के रैंक का पर्सन बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी यूनिफॉर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चा जो है डरे ना और बच्चा अपनी स्टेटमेंट ठीक से दे पाए। चाइल्ड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एक्यूज्ड पर्सन, हर लेवल पर जो है केयरफुल रहना है कि अगर बच्चा स्टेटमेंट रिकॉर्ड अपने दे रहा है तो जो एक्यूज्ड पर्सन है वो बच्चे के कांटेक्ट में ना आए, सो दैट कि बच्चा फिर नहीं तो बता नहीं पाएगा पूरा इंसिडेंट्स जो है और वो डर सकता है। चाइल्ड नॉट टू बी डिटेन्ड इन पुलिस स्टेशन इन नाइट, किसी भी कंडीशन में जो है बच्चे को रात को पुलिस स्टेशन में नहीं रखना है। असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एंड स्पेशल एजुकेटर एज द केस में बी, अगर बच्चे की लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं पुलिस पर्सनल या फिर बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, इन दैट केस दे कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एज द केस में बी। Wherever possible, recording also by audio, video, electronic means, जहां तक possible हो। लेकिन now it is very easy कि सबके पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, तो बच्चा जब स्टेटमेंट दे रहा है उसके लिए ऑडियो वीडियो बना के रख सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा कोर्ट में जाकर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इसमें मोनिका, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई? नो सर प्लीज। इसमें जो एक यहाँ पर जो लाइन दिया है मोनिका मैम ने, असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर, स्पेशल एजुकेटर, बेसिकली क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, काफी स्पेशल एजुकेटर भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट किस तरह से इनकी सहायता लेगा या कोर्ट किस तरह से इनको इन केसेस में इन्वॉल्व करेगा। तो टू गिव इंफॉर्मेशन, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनी हुई हैं, जैसे हम बाल संरक्षण इकाई बोलते हैं, और जो हमारे डीसी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर, वो इस पर्टिकुलर कमेटी को हेड करते हैं। तो जैसे सीआरसी सुंदरनगर भी है, तो अगर आप देखेंगे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं वो इस कमेटी को हेड करते हैं। तो आप में से कोई भी ऐसा रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जो इस तरह के केसेस में अपने आप को सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उन्हें पहले वहां जाकर के अपना नाम देना होगा। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं वहां पर,
जनरली जो ICDS के हैं उन्हीं को चार्ज या फिर अलग से भी होते हैं। तो जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह के केसेस के साथ या फिर एक्सपीरियंस या फिर अपनी सेवाओं को देना चाहते हैं, वो अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि आपकी सेवाएं भी लेंगे तो वहां पर आपको जो सरकार की तरफ से एक मानदेय है या ऑनोरेरियम है, सरकार उसको आपका मानदेय भी प्रोवाइड करती है। तो आप में से कोई अगर ऐसा है तो याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस में DC उसको हेड करते हैं, आप वहां जाकर के मिल सकते हैं। Okay, thank you, sir. So next is procedure for recording statement of the child. First is recording of statement by magistrate under section 25. तो जो बच्चे की स्टेटमेंट जब मैजिस्ट्रेट के सामने होती है तो इसमें जो है एज पर 164 जो हमारा CRPC है उसके अकॉर्डिंग ही होती है, बट सब सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन 164 शैल नॉट अप्लाई। मीन्स जब जनरली जो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रहती है तो वहां एक्यूज्ड पर्सन जो होता है उसका वकील वहां पे रहता है, लेकिन पॉक्सो में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर पॉक्सो में जो है सिर्फ बच्चा, उसका गार्जियन, बच्चे का वकील और मैजिस्ट्रेट ही रहते हैं। एक्यूज पर्सन का जो वकील है वो भी अलाउड नहीं होते हैं। एज स्पोकन बाय द चाइल्ड मीन्स कि जैसे बच्चे ने स्टेटमेंट बोला है वैसे ही उसको रिकॉर्ड करना है, कहीं पे भी उसको कट शॉर्ट नहीं करना है या अपने वे से उसको इंटरप्रेट नहीं करना है। जैसे बच्चे ने बोला उसको एज सच लिखना है और फिर उसको बच्चे को भी बताना है क्या लिखा और उसके पेरेंट्स को भी बताया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 27। मोनिका, मे आई रिक्वेस्ट, कोई हरिशंकर है, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन चला दिया है तो मुझे फिर से शेयर करना होगा। जो टेक्निकली देख रहे हैं अगर वो उसको पिन कर देंगे तो बाकी सब हट जाएगा। मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। आप फिर से शेयर कर लीजिए क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा हो। हरिकृष्ण डी हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो फिर से उन्होंने प्रेजेंट वाला बटन दबा दिया है। आई एम गोइंग टू शेयर इट। आप ये हटाएंगे? मैंने शेयर कर दिया है सर, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ, अभी आ रहा है आपका, ठीक है। Okay. Now next is medical examination of the child under section 27 of the Act. In case of girl child, medical examination by the lady doctor only. जहां तक possible है गर्ल चाइल्ड का है तो लेडी डॉक्टर ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगी। इन केस वहां पे लेडी डॉक्टर नहीं है तो इन दैट केस जो है एक नर्स को अपॉइंट करेंगे जो उस बच्चे के साथ जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम वहां पर रहेंगे उसके साथ। मेडिकल एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। बच्चे का जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है बच्चे के पेरेंट्स, उसका गार्जियन और एनी अदर पर्सन जिसके ऊपर बच्चे को ट्रस्ट है, फेथ है, वो बच्चे के साथ वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। स्पेशल कोर्ट्स अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। स्पेशल कोर्ट जो है ये कोई अलग से कोर्ट्स नहीं है, जो हमारे रेगुलर कोर्ट ऑफ सेशन है इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्हीं को ही डेजिग्नेट कर दिया गया है एज ए स्पेशल कोर्ट। बट द डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है अलग से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि सिर्फ पॉक्सो के केसेस से डील करते हैं। तो स्टेट जो है कैन अपॉइंट मोर देन वन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर द पेंडेंसी ऑफ केसेस। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट सेक्शन 33। अब जब बच्चा स्पेशल कोर्ट में आता है तो वहां पर वो मैजिस्ट्रेट के सामने जो है उसकी जो उसने पहले स्टेटमेंट दिया है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। सो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर चाइल्ड ड्यूरिंग ट्रायल। जब भी बच्चे का कोर्ट में आके ट्रायल होता है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है ब्रेक दिया जाए सो दैट कि बच्चा कंफर्टेबल रहे और हैरेसमेंट फील ना करे बच्चा कहीं पर भी।
पेरेंट्स, प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन, फ्रेंड, रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर जो है बच्चे के पेरेंट्स, उसके गार्जियन, फ्रेंड्स और रिलेटिव जो हैं वो बच्चे के साथ वहां रह सकते हैं कोर्ट में। चाइल्ड नॉट टू बी कॉल्ड रैपिडली टू टेस्टिफाई, क्योंकि बच्चे को बार बार ब्रेक दे रहे हैं तो बच्चे को बार बार टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड नॉट टू बी डिस्क्लोज, यहाँ पर भी केयरफुल रहना है इन स्पेशल कोर्ट की, यहाँ पर भी आकर बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। नो एग्रेसिव क्वेश्चनिंग एंड करेक्टर असैसिनेशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे से गुस्से में या उसके करेक्टर जो उसने अगर प्रीवियसली कोई गलती अगर बच्चे ने की है उसका कोई एग्जाम्पल नहीं देना है वहां पे। इन कैमरा ट्रायल ऑफ केसेस, इन कैमरा ट्रायल मीन्स एक बंद कमरे में जहां पर मैजिस्ट्रेट है, बच्चा है, बच्चे के प्रोसिक्यूटर हैं और बच्चे के पेरेंट या गार्जियन उसके साथ है, बस यही लोग अवेलेबल रहेंगे। बाहर के किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। सो हम इसको कहेंगे कि इट इज इन कैमरा ट्रायल ऑफ पॉक्सो केसेस। चाइल्ड नॉट टू सी द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, कोर्ट में भी ये केयरफुल रखते हैं केयर कि बच्चा यहाँ एक्यूज पर्सन के कांटेक्ट में ना आए। जैसे बहुत सारे स्टेट्स ने जो है इसके लिए अरेंजमेंट्स किए हैं, जैसे वो सिंगल विजिबिलिटी मिरर को यूज करते हैं और या फिर थिन कर्टन्स को यूज करते हैं सो दैट कि बच्चा एक्यूज पर्सन को ना देख सके। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स में, स्पेशल कोर्ट में टेक असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर एंड स्पेशल एजुकेटर। अगर पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के टाइम इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या स्पेशल एजुकेटर का हेल्प ली है तो यहाँ पर फिर से कोर्ट को भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कोर्ट भी हेल्प ले सकता है। एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज, इट इज इम्पोर्टेंट कि 30 डेज का टाइम है एज पर एक्ट की कोई भी अगर बच्चे के साथ असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट, उस केस में 30 डेज के अंदर जो है पुलिस को पूरे एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं ताकि ट्रायल जल्दी स्टार्ट हो सके। बिकॉज एज पर एक्ट जो है कंप्लीशन ऑफ ट्रायल जो है एक केस का वो विद इन 1 ईयर, कि विद इन 1 ईयर जो है उस केस का ट्रायल जो है हमें ओवर करना है। अब देखिए जैसे 30 डेज का जो एविडेंस का पीरियड है, अगर पुलिस 30 डेज में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाती है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो रिटर्न में देना पड़ता है उनको कि वो 30 डेज में एविडेंसेस रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाए हैं, या फिर उनको ये भी देना पड़ता है रिटर्न में कि वो 1 ईयर में बच्चे का केस का ट्रायल क्यों नहीं ओवर हो पाया है, क्योंकि एज पर एक्ट जो है ये टाइम बाउंड चीजें हैं। सेक्शन 34 जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 34 है, एज पर दिस सेक्शन जो है, देखिए एक चीज बहुत क्लियर है कि पॉक्सो एक्ट कब लगता है, जब विक्टिम मींस चाइल्ड इज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज है और जिसने ऑफेंस किया है, अपराधी जो है वो अबव 18 इयर्स है, ठीक है, तभी पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए कि विक्टिम भी बिलो 18 है और जिसने ऑफेंस किया है वो भी बिलो 18 इयर्स है, तब पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में जो है जो केसेस जो हैं उसके लिए हमारा एक अलग से एक्ट है बिलो 18 बच्चों के लिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, तो उसमें डेल्ट किया जाता है वो एक्ट केस जो होता है। अगर दोनों ही विक्टिम एंड ऑफेंडर दोनों ही अबव 18 इयर्स हैं तो वो आईपीसी में चला जाता है। तो ये एक बहुत डिफरेंस है कि विक्टिम बिलो 18 है और एक्यूज्ड अबव 18 है, तभी पॉक्सो एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। कंपनसेशन एंड फ्री लीगल एड एक्ट में जो है कंपनसेशन का प्रोविजन है, फ्री लीगल एड का प्रोविजन है, काउंसलिंग का प्रोविजन है, सपोर्ट पर्सन का प्रोविजन है। लेकिन ये सारी सर्विसेज जो अवेलेबल है ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे की फैमिली को बताए कि आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है, आपको फ्री लीगल एड भी मिल सकता है, आपको काउंसलिंग का भी प्रोविजन है। सो फॉर कंपनसेशन जो है देयर इज प्रोविजन ऑफ इमीडिएट रिलीफ, मीन्स कि कई बार बच्चे को इमीडिएटली कुछ मनी चाहिए है तो उस केस में एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही इमीडिएटली बच्चे को कुछ अमाउंट जो है वो कंपनसेशन का दे सकते हैं। और फ्री लीगल एड कैसे मिलता है बच्चे को, जो फैमिलीज अपना अलग से वकील नहीं कर सकते हैं तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डालसा जिसको हम कहते हैं
कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, तो डालसा में जाके वहां पर उनको फ्री लीगल एड के जो है मिल जाता है, वहां से उनको एक वकील असाइन कर दिया जाता है जो उस बच्चे के केस को आगे फाइट करते हैं। कंपनसेशन, अब कंपनसेशन का टोटल अमाउंट कितना होगा, इसके लिए जो है कुछ कंडीशंस एक्ट में दी गई हैं और कमेटीज बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो कमेटीज इन कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि बच्चे को टोटल कितना अमाउंट जो है वो कंपनसेशन का देना है अंडर दिस पॉक्सो एक्ट। सो फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज टाइप एंड ग्रेविटी ऑफ एब्यूज। टाइप मतलब ये सेक्शन 3 में हुआ है, 5 में हुआ है, 7 में हुआ है या 9 में हुआ है, तो कौन सा ऑफेंस हुआ है बच्चे के साथ और किस हद तक बच्चे के साथ ऑफेंस है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, कि बच्चे के मेडिकल ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा आया है। लॉस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कमेटी इस चीज को भी कंसीडर करती है। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मींस कि अगर बच्चा 14 to 18 ईयर्स था तो हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट जो है बच्चे को काम करने के लिए अलाउ करता है। अगर बच्चा कहीं काम करके फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जो है कमेटी कंसीडर करती है। रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड विद ऑफेंडर, बच्चे का ऑफेंडर के साथ रिलेशन क्या है, क्योंकि कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फादर ने ही बच्चे के साथ अब्यूज किया है, तो बच्चा फादर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट था, अब फादर तो जाएगा जेल में, तो बच्चे को फाइनेंशियली कौन ये करेगा, सपोर्ट करेगा, या फैमिली का कोई ऐसा मेंबर था जो बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, तो अब बच्चे को कौन सपोर्ट करेगा। सो कमेटी कंसीडर दिस कंडीशन ऑल्सो। अब्यूज वाज सिंगल हुआ था या फिर बार बार बच्चे के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफेंस हुआ है। अगर गर्ल चाइल्ड है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, दे कंसीडर दिस कंडीशन। या बच्चे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है आफ्टर दिस ऑफेंस, या बच्चे को HIV हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है बच्चा, तो उस कंडीशन को कंसीडर करते हैं। डिसेबिलिटी सफर्ड बाय द चाइल्ड, अगर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है उस ऑफेंस के बाद तो दे कंसीडर दैट कंडीशन ऑल्सो। एंड दे कंसीडर द प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, कि जब वो ऑफेंस हुआ है तो बच्चे के घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। तो सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस कंडीशन जो है द कमेटी डिसाइड कि बच्चे को कितना अमाउंट जो है इसमें दिया जाएगा। कंपनसेशन टू बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, कि जब एक बार जो है कोर्ट से अमाउंट का ऑर्डर हो जाता है तो 30 days के अंदर जो है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द कंपनसेशन अमाउंट टू द चाइल्ड। वो 30 दिन के अंदर जो है बच्चे को प्रोवाइड करना है। मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस, जो नेशनल लेवल पर जो एक्ट की पॉक्सो के केसेस की मॉनिटरिंग है दैट इज अंडर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो है वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग देखता है। एक्ट में मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहूंगी कि एक्ट में सपोर्ट पर्सन का भी प्रोविजन है और एक जो सर ने आपके साथ बात करी इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या एजुकेटर की, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट पर्सन। सपोर्ट पर्सन क्या है, क्योंकि इसलिए फैमिली को देते हैं क्योंकि फैमिली को क्या लगता है कि बार बार कोर्ट में आना, बार बार पुलिस स्टेशन में आना, अपने केसेस के बारे में पूछना, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, आगे क्या हो रहा है, तो बार बार हैरेसमेंट फील होता है फैमिली को भी और बच्चे को भी। एंड सेकंड थिंग कि उनको लगता है कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो लीक हो रही है। अगर इस कंडीशन में जो है ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैमिली को इन्फॉर्म करे कि अगर आप सपोर्ट पर्सन चाहते हो तो आपको सपोर्ट पर्सन मिल सकता है। और अगर फैमिली कहती है कि यस वी नीड सपोर्ट पर्सन, तो उनको एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है एक सपोर्ट पर्सन फैमिली को प्रोवाइड कर देती है। और जब सपोर्ट पर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देती है तो कोर्ट में भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये बच्चे का सपोर्ट पर्सन है, सो दैट अगर वो पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन कोर्ट या पुलिस स्टेशन में मांगे तो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो ये सपोर्ट पर्सन जो होता है ये बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है, टाइम टू टाइम बच्चे की फैमिली को अपडेट करता है कि आपके केस में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कंपनसेशन का, या आपको लीगल एड मिल सकता है, या आपके अक्यूज्ड पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, केस में कहाँ किस डेवलपमेंट क्या है, केसेस में किस स्टेज में है, हियरिंग कब होगी। तो ये एक जो लिंक की तरह काम करता है पुलिस स्टेशन, कोर्ट
और फैमिली के बीच में। और इससे फायदा ये रहता है कि बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। हाँ, अभी जैसे सर ने आपसे बात करी थी कि इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर एंड स्पेशल एजुकेटर जो है वो ले सकते हैं, तो सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप जो है अपने आप को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठते हैं आपके, वहां पर जाकर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि यस आप मुझे एज ए इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर ले सकते हो, या आप मैं स्पेशल एजुकेटर जो है आपके साथ जो है वो लिंक हो सकता हूँ। तो उस कंडीशन में जो है एक्ट में कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि किस बेसिस पे हम इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर को लेंगे और स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं। तो अगर कोई भी पर्सन एज ए इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर एंगेज होना चाहता है, सो एज पर दिस एक्ट जो है, द इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर शुड हैव फंक्शनल फैमिलियरिटी with language spoken by the child as well as the official language of the state। ये जो है वो फैमिलियर होना चाहिए बच्चे की लैंग्वेज के साथ और जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ईदर बाय वर्च्यू ऑफ सच लैंग्वेज बाय चाइल्ड्स मदर टंग और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल एट लीस्ट अप टू प्राइमरी स्कूल लेवल। कि वो जो लैंग्वेज है बच्चे की, चाहे वो बच्चे की मदर टंग से हो या फिर बच्चे ने जो है 5th स्टैंडर्ड तक जो लैंग्वेज यूज की है, वो लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर जो है वो फैमिलियर हो, तभी वो पर्सन जो है एज अ इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर जो है वहां पर एंगेज हो सकते हैं। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स या स्पेशल एजुकेटर एंड एक्सपर्ट्स एंटर्ड इन द रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स कि अगर आप डीसीपीयू के साथ कोलैबोरेट करते हो और वहां जाकर उनके रजिस्टर में जाके रजिस्टर हो जाते हो एज अ स्पेशल एजुकेटर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर, देन एज पर रूल जो है शुड हैव रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस इन साइन लैंग्वेज और स्पेशल एजुकेशन, और in the case of an expert in the relevant discipline from recognized university or an institution recognized by the Rehabilitation Council of India। तो ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास इस तरह से एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके पास एक सर्टिफाइड है आप, तो आप वहां जाकर जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और डीसीपीयू के पास ऑलरेडी ये उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अगर ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर को अपने साथ एंगेज करते हो तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करने हैं। Any interpreter, translator, special educator, expert or support person engaged in the purpose of assisting a child shall be paid a fee। जैसे सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि एक पेमेंट भी किया जाता है, ऐसे में फ्री में सर्विसेज नहीं ली जाती हैं। अगर आप जो स्पेशल एजुकेटर हैं या ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर है तो आपको प्रॉपरली फी भी पे की जाती है। और ये जो होती है shall be prescribed by the state government, what which shall not be less than the amount prescribed for a skilled worker under minimum wages act 1948। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली जो है जितनी बार आपकी सर्विस, जैसे एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है 1500 रुपीज है पर मीटिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है पेमेंट किया जाता है। Any preference expressed by the child at any stage, अगर बच्चा किसी भी स्टेज पे इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या स्पेशल एजुकेटर के लिए ये कहता है कि उसको अपनी चॉइस देता है जेंडर के लिए, जैसे लड़की है वो चाहे नहीं मुझे फीमेल इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर से ही बात करनी है या फीमेल स्पेशल एजुकेटर ही चाहिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की चॉइस को कंसीडर किया जाए। तो जो भी बच्चे की चॉइस है और हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही स्पेशल एजुकेटर जो है उसको असाइन किया जाता है जो जिस जेंडर के लिए बच्चे की चॉइस है। Any interpreter, translator, special educator, expert or support person appointed under this act shall be bound to the rules of confidentiality। It is very important क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि केस की हर स्टेज पे जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। अगर आप भी एज ए स्पेशल एजुकेटर, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर वहां एंगेज होते हो
then it is important for you also to maintain the confidentiality of the case, कि आप हर स्टेज पे जो है उसकी confidentiality को maintain करें। बच्चे ने क्या बताया, क्या डिस्कस किया, आप किसी और के साथ वो शेयर ना करें। ये अगर आप चाहें तो एज ए स्पेशल एजुकेटर, इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर जो है आप वहां पर एंगेज हो सकते हैं। ये जो थे ये प्रोविजंस थे अंडर पॉक्सो एक्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, पॉक्सो ई बॉक्स। पॉक्सो ई बॉक्स जो है, दिस इज वन ऑफ द ऑनलाइन इनिशिएटिव फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट। ये कहाँ मिलता है पॉक्सो ई बॉक्स? अगर आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR हम इसको बोलते हैं, एंड इट इज गिवन इन द स्लाइड ऑल्सो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स ने जो, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, आप उसके होम पेज पे ही आपको एक बॉक्स जैसा मिलेगा, इस तरह का बॉक्स होगा, आपको इस तरह का एक पॉक्सो ई बॉक्स मिलेगा। और यहाँ पर जो है स्टार्ट होता है अगर हम कोई अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन। मींस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पाता है बच्चा, तो ये एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। या बच्चे के बिहाफ पे अगर कोई पर्सन कंप्लेंट करना चाहे, आप करना चाहो या मैं करना चाहूँ, तो हम भी ऑनलाइन जाकर जो है बच्चे के साथ जो है उसके कंसेंट के साथ जो है ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये कंप्लेंट जब हम रजिस्टर करते हैं तो ये कंप्लेंट डायरेक्टली NCPCR में जाती है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उसके बाद जो है बच्चे ने जो भी डिटेल्स दी हैं, फिर NCPCR जो है डायरेक्टली जहां पे भी बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है वहां के पुलिस स्टेशन के साथ इस केस को टेकअप करते हैं। और जब हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट होता है, एंड टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ दैट यूनिक आईडी जो है वी कैन सी द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट आल्सो, कि मैंने जो कंप्लेंट की थी उसका क्या स्टेटस है। तो ये एक ऑनलाइन बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। तो वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस की इस तरह का पॉक्सो ई बॉक्स है और कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है। बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है कि अगर वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो वो इस ई बॉक्स को यूज करके भी कर सकते हैं। This e-box is very simple to operate and it helps to maintain the confidentiality of the complaint. This is the important feature of this e-box. जब आप देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेस दिस बटन, मीन्स जो रेड कलर में जो है ई बॉक्स लिखा है आपको वहां पे प्रेस करना है। द मोमेंट वी प्रेस दिस बटन हमारे पास एक छोटी सी फिल्म आती है। This will navigate to a page with a window containing an animation movie. एक छोटी सी एनिमेशन मूवी आती है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फीमेल है जो कि बच्चे को बताती है कि आपके साथ जो भी हुआ है वो आपका फॉल्ट नहीं है। There is no need to feel guilty about that. NCPCR is your friend and you can tell us your problem. तो जब ये मूवी प्ले हो जाती है देन अगेन यू कैन सी देयर इज अ ब्लू कलर एरो, प्रेस हियर। जब यहाँ प्रेस करते हैं देन यहाँ पे पिक्चर्स आ जाती हैं। स्टेप 2, बिकॉज ये बहुत ही पिक्टोरियल है सो दैट कि बच्चा बहुत इजीली अंडरस्टैंड करे कि उसको कैसे है। यहाँ पे पिक्चर्स है, बच्चे को किसी एक पिक्चर पे क्लिक करना है कि उसके साथ कहाँ ऑफेंस हुआ है। प्लेग्राउंड, शॉप और रॉड, ट्यूशन और स्कूल, ब्लैकमेलिंग, इंटरनेट और फोन, फैमिली, इंटरनेट एंड फोन मींस ये नया फीचर एक ऐड किया फॉर साइबर क्राइम, फैमिली मेंबर, रिलेटिव एंड अदर्स, और इन स्कूल। जहां पर भी बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है बच्चा एक पिक पे क्लिक कर देता है और उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट प्रेस करना है बच्चे को। तो उसके बाद जो है एक छोटा सा फॉर्म आता है जहां पर बच्चा या बच्चे के बिहाफ पे कोई भी पर्सन जो है उसका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पर जो है 5th नंबर पे आके उसको पूरे इंसिडेंट्स को इलेबोरेट करना है कि उसके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद जो है बच्चा यहाँ क्लिक करके सबमिट कर देता है, सबमिट बटन पे क्लिक करके अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर देता है। तो इस तरह से जो है ये एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है फॉर रिपोर्टिंग पॉक्सो केसेस। तो अगर अवेयरनेस है हम औरों को भी अवेयर कर सकते हैं कि इस तरह से भी हम वहां पर केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। और NCPCR जो है इसको डायरेक्टली मॉनिटर भी करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉक्सो एक्ट। सो नाउ you have any question,
doubt, so you can ask your questions now. Now, ma'am, session is over from my side. If any question and doubts. First of all, I would thank you so much for this valuable presentation. So many terms, so many sections, they were now very clear. I would thank you once again for this wonderful presentation. Yeah, there are few questions by few participants in the chat box. Okay, So, possible, if you want me to read out, I'll read out. Otherwise, if possible, please do answer Yes. these questions. Yeah, one of the question I would like to read out. One of the participant has questioned by name Swagata. Madam, here we watch the baby's private parts in the Johnson's and Johnson's products advertisement. Does this come under any offense? मैम जॉनसन की जो एड है उसमें अगर हम देखेंगे तो बच्चे के जो सेक्सुअल पार्ट्स को तो ऐसे अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली बच्चे के दिखा रहे हैं, वी कैन कंप्लेन। और आप देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट में भी नीचे आ रहा होता है कि अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम यू कैन कंप्लेन। सो वी कैन कंप्लेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन कंप्लेन। Okay, so you have to complain it where? Like, मैम एक तो जो ब्रॉडकास्ट जो अपना एड्रेस देते हैं कि आप वहां कर सकते हैं, जो भी इसको एडवर्टीज कर रहा है वहां कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमें पहले तो उन्हीं को ही कंप्लेन करना है। और यहाँ पे जो सेक्सुअल है कि अगर बच्चे के सेक्सुअल पार्ट्स को बार बार फोकस करके एक सेक्सुअल इंटेंशन के साथ दिखाया जा रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द सेक्सुअल इंटेंशन बिहाइंड एनी एक्ट। कि एक सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, एक गलत इंटेंशन के साथ बच्चे के सेक्सुअल पार्ट्स को बार बार करके दिखाया जा रहा है, then it is under POCSO Act. Then we can complain in the police station also. Okay. So there's one more question by Dr. Maushmi Bhomik. How does the recordings of children with disabilities take place? In the procedures. For example, children with intellectual disability or multiple disability, hearing impairment and visual impairment of disability. This is a question. Yeah. Okay. मैम सी इन केसेस जो है हमें एक स्पेशल एजुकेटर की ही हेल्प लेनी होगी, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पुलिस ऑल्सो टू टेक द स्टेटमेंट ऑफ सच चाइल्ड। ठीक है, एक तो स्पेशल एजुकेटर हेल्प कर सकता है अगर बच्चा कुछ भी इशारों से बताने की कोशिश, और अगर बच्चे के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है मेडिकल कैन प्रूव कि बच्चे के साथ जो है वो उसकी जो एक्सटर्नल इंजरीज है या बच्चे का मेडिकल होता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वी कैन नॉट फोर्स द चाइल्ड एज पर एक्ट, जो है हम किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं फॉर द मेडिकल। इन दैट कंडीशन जो है बच्चे की जो कंडीशन है एंड एक्सटर्नल इंजरीज हैं उसी से हमें असेस करना होता है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। और बाकी जो है हमें एक स्पेशल एजुकेटर ही हेल्प करेगा। और जो ये बच्चे जो हैं मेनली अगर हम देखेंगे तो ऑफेंस वही कमिट करते हैं जो बच्चे के साथ बार बार कांटेक्ट में पर्सन आ रहा है। सो जो है एक स्पेशल एजुकेटर की ही हेल्प हमें वहां पर लेनी है। ओनली दैट। यस सर प्लीज। मौसमी, कैन यू हियर मी? डॉक्टर मौसमी, कैन यू हियर मी? Yes, Sunil. Good afternoon, Vanita, Dr. Monica, Sunil. Hello, ma'am. Okay, I'll just explain one thing here is like आपको किसी भी तरह से तो पता चला होगा ना कि बच्चे के साथ में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। Yeah, parent. Now, beauty of this act is that कि ये बच्चे को प्रूव नहीं करना है कि उसके साथ ये सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। ब्यूटी ऑफ द पॉक्सो इज ये जो अक्यूज्ड है उसको प्रूव करना है कि उसने ऐसा नहीं किया है। नंबर 1। Oh, great. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट। एट किसी भी स्टेज में जैसे 164 या कोई भी लेवल पे होगा, आई थिंक मोनिका यू विल एग्री टू मी दिस ना? यस सर राइट सर। इसमें बच्चे को ये प्रूव कहीं नहीं करना होता है कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। एक्चुअली जो परपेट्रेटर है या जिसके ऊपर ये लगा है इल्जाम कि उसने ऐसा किया है, ये उसको प्रूव करना है कि उसने बच्चे के साथ ऐसा गलत नहीं किया। नाउ अभी हाल ही में अगर आप देखें तो
जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके साथ में बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस की घटनाएं हुई हैं। अभी अगर आप 2019 के आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े देखें तो जो रिपोर्टिंग है दैट हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। तो इस अभी मई 2020 में ही मंत्रालय जो हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देयर आर वेरी क्लियर कट रूल्स जो अभी पार्लियामेंट ने अमेंड करके पॉक्सो में सामने हमारे आए हैं, इसी महीने ही अभी रिलीज हुए हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेटर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उस तरह के केसेस में बच्चे के साथ जो स्पेशल एजुकेटर डील कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, अगर आप देखेंगे अगर बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो सबसे पहले हो सकता है कि शायद स्पेशल एजुकेटर के ही नॉलेज में वो आया हो, पेरेंट्स की नॉलेज में शायद काफी देर बाद में भी हो सकता है। तो ये जो रोल है स्पेशल एजुकेटर का ये बहुत क्रूशियल है, ताकि जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी उस कोर्ट प्रोसीडिंग में भी हर लेवल पे वो स्पेशल एजुकेटर बच्चे के साथ रहेगा। ओके। दूसरा जो सवाल आता है डॉक्टर मौसमी की, स्पेशल एजुकेटर को ये कैसे पता लगेगा कि लीगल जो हमारे प्रोविजन है वो क्या है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से बच्चे को एक सर्विस प्रोवाइडर असाइन किया जाता है। वो सर्विस प्रोवाइडर हर लेवल, हर स्टेज और हर दिन में पेरेंट्स और बच्चे की सपोर्ट के लिए ही होगा, और वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उस स्पेशल एजुकेटर को भी जो लीगल हमारी प्रोविजन है उसके बारे में नॉलेज देते हुए। Right. Am I clear? You are satisfied with the answer? Yeah, satisfied. But I like to just say I had witnessed to me 5-6 cases where I had this problem जहाँ पे बच्चे का इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्पेशल एजुकेटर को क्यों लिया जा रहा है, जब आप ये कह रहे हैं जो अक्यूज्ड है उसको प्रूव करना है कि मैंने क्राइम नहीं किया है। तो ये सभी केस में हमें जाके बच्चे का व्यवहार और वो क्या बोल रही है उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट यहीं पे है, कुछ रियली बच्चे हैं जो एक्चुअली दे हैव अंडरगॉन with this type of abuse, but they really cannot express despite mother, despite a teacher. Then what happens in such cases? देखिए, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप देखेंगे तो दो तरह के स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। नंबर वन है 161 जो पुलिस स्टेशन में लिया जाता है, जिसे 161 हिंदी में हमेशा आपने सुना होगा ना। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कोर्ट अपने सामने 164 का बयान भी लेता है। 160 अंडर सेक्शन 164 का भी वहां पर बयान लिया जाता है। तो यहाँ होता क्या है कि ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर ये इल्जाम लगा है, लेकिन ये जरूरी है कि पहले ये तो हम क्लियर कर ले कि हाँ ऐसा बच्चे के साथ हुआ भी है कि नहीं। तो इसीलिए जो अंडर 164 स्पेशल एजुकेटर्स की इन प्रेजेंस ऑफ जज जरूरत होती है। Okay. If the child is below 6, I mean if the child is very young, 3 to 4 years age and child with special need, in that case sir थोड़ा क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली ये कोई एक प्रक्रिया, इनफैक्ट आपने देखा होगा कठुआ है जहां पर जम्मू में आई थिंक 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ भी हुआ है ऐसा। और है ना, और अभी जो पॉक्सो में अमेंडमेंट किया है उसमें आप देखिए ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैटेगरी में है। और एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस से एक चीज और सामने आती है, दूसरी इसमें इंडीड जो हमारा डेथ पेनल्टी तक उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। नाउ ये कुछ कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स मेडिकल एक अपने आप में रहेगा, लेकिन बच्चा जो है कुछ हद तक इशारे से, मुझे एक अच्छी तरह से याद है केसेस हमने डील किया था, उस केसेस में बच्चा जो है जैसे ही किसी अक्यूज को देखता था वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करता है। नाउ इस पर्टिकुलर बिहेवियर से आपको क्या लगेगा? Yeah, I can interpret. Yeah, something has happened to that part. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है क्लू, जो बच्चा उस लेवल पे कहीं ना कहीं ऐसा बिहेवियर आपको एग्जिबिट करेगा ही करेगा। और फॉर दैट ओनली वी आर हियर,
बी से मतलब है स्पेशल एजुकेटर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। ओके, तो उस पर्टिकुलर जैसे 3 साल के नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बिहेवियर अगर स्पेशल एजुकेटर नोट करे या उसका इंटरप्रिटेट करके बता सकते हैं, तो दैट वुड ऐड ऑन स्ट्रेंथ टू द केस। ओके, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि कई बार ऐसा नहीं हो सकता है, या कई बार ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसे केसेस में अक्सर जो केस है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन पे पूरा बेस्ड हो जाता है। ओके। सो सुनील या मोनिका जी, ये सिर्फ बताइए कि कब हम स्पेशल एजुकेटर को बुलाते हैं? तभी कि जब वो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाया है, और कुछ बच्चे होंगे जो आराम से बोल पाएंगे, तो इन दैट केस क्या स्टिल स्पेशल एजुकेटर को बुलाते हैं आप? देखिए, ये फैसला कोर्ट का है। ओके, ये फैसला हम और आप मैम फर्स्ट लेवल पे, ये सर फर्स्ट लेवल पे तो मैम जैसे पुलिस जो ऑफिसर होगा उसकी नीड की अकॉर्डिंग होगा वो। ओके, अगर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही है डिफिकल्ट स्टेट में कुछ स्टेटमेंट भी, तो दे विल कांटेक्ट द डीसी फॉर इंटरप्रेटर और द स्पेशल एजुकेटर मैम। right, got it now. Yeah, it is a part of a court side. Yeah, procedure में. Yeah, we cannot decide कि हमें इस बच्चे को चाहिए कि नहीं। हाँ, that we Very cannot decide मैम। I can still say the field of special education still doesn't know about POCSO, and I think there should be an attempt to know POCSO in a very handy way. जैसे अभी जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह हर लोगों के अंदर है, तो I think every special educator और पूरा field of special education is still to know POCSO in a real sense. Thank you so much, Vanita, Sunil, and Dr. Monica. It is really wonderful session going on. Thank you। And indeed, मौसमी ऐसा नहीं है कि पॉक्सो ये है, उसमें अवेयरनेस का भी प्रोविजंस हैं। अवेयरनेस से मेरा मतलब है एज ए स्पेशल एजुकेटर, अगर आप अपनी क्लास में थ्रू पिक्टोरियल्स, थ्रू काफी सारी मूवीज हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ने कार्टून्स के जरिए बताया है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। हम अपने जो स्पेशल बच्चे हैं, अगर उनके करिकुलम में ही ये सारी चीजें डाल देंगे तो बच्चों को ये सब चीजें बताने में आसानी होगी। Right. Agreed. हम इंडिविजुअल one movie on YouTube, Yeah. Komal, that Okay. is available in 10 languages, so we can play that, जो बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हो, या फिर हम जो हमारे जैसे जो स्टाफ है उसको दिखा सकते हैं कि वो आगे बच्चे को कैसे बता सकते हैं। दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दैट मूवी वेरी ब्यूटीफुली, कि हम कैसे उसको बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कब आके कंप्लेन करना है, क्या क्या सिचुएशंस रहता है। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड मूवी, कोमल। Thank you. I noted. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you, Dr. Moshmi. One thing I want to share my idea is, in fact, not only the parents and the special children, in fact, the rehabilitation professionals and especially special educators, their curriculum also, whether they are doing any disability, the diploma in any disability, whether it is hearing impairment or mental retardation or whatever intellectual disability, the POCSO Act should be, part of the curriculum. Like when we share the meetings, like when we attend some meetings, you as a expert, this can be incorporated in the RCA syllabus. That has to be made mandatory, and their role, the importance of their role, their voluntary involvement, at any district, should be oriented. Their voluntary involvement, the importance of it, they should be oriented with. नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोर्ट और पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्रोफेशनल, एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग, ये प्रॉब्लम आती है, वहां पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, इस तरह की सवाल एज ए ह्यूमन बीइंग आते ही, इफ आई एम राइट। एंड वही चीज रिहैबिलिटेशन, पता नहीं कितनी बार जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं हमारी कितनी लायबिलिटी रहेगी, ये सारी चीजें हैं। थिंग्स, every one of us, because I am also a rehabilitation professional, every one of us should be motivated, because अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? This kind of attitude should be inculcated. So I would thank you so much for your ideas. Thank you so much for all the participants. I do request the participants to please take it as a responsibility, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? So all of us
come together and forward for making these things, especially for children with special needs. क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये वाला जो सोच है. So it was a good. Thank you. Ma'am, ma'am, I want to make कि जैसे हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर विद मेंटल डिसेबिलिटी, तो हमारे बहुत लिमिटेशन हो जाता है कि हम बच्चे को अवेयर नहीं कर सकते रिगार्डिंग एंड बैड टच. वो हमारा लिमिट जो है, वी नीड टू वर्क मोर एंड मोर ऑन स्टाफ एंड मैनेजमेंट का जो के ऊपर ज्यादा हमें काम करने की, टू सेंसिटाइज देम, और रेगुलर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए उनका, सो दैट कि एक पॉजिटिव वे में उनको लेकर अब्यूज. लेकिन जिन बच्चों को हम अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि बट इज गुड टच एंड बैड टच, कुछ डिसेबिलिटीज हैं जहाँ पे बच्चा समझ सकता है, तो हमें उनको भी एम्पावर करना है. एंड वी नीड टू अवेयर आवर स्टाफ आल्सो. Yes, yeah, that could be done, that can be done. Thank you once again, our key speakers, Dr. Monica and Sunil ji. Thank you so much for sharing your ideas with us, and I will look forward to keep continuing these orientation, webinars. And I would also thank our director, Dr. Himanshu, who gave me this opportunity for organizing this webinar. Thanks for giving me this opportunity to interact with all the special educators or those who are working with children with special needs. And thank you, madam. Thank you. I would one request, Dr. Monica, can you please share the presentation on my yes, ma'am. And yes, ma'am. So that if any participant wants, we can do forward the information. Yeah. Thank you so much. Definitely. I would also thank the technical group, Shakti ji and Jitendra ji, for handling the IT issues of the webinar. Thank you so much for them, without which this wouldn't been possible. Thank you, Shakti. I would request the participants to please fill up the feedback form about this webinar. I would request the participants, please do fill up the feedback form. The link is open. Okay, ma'am, I am leaving, ma'am, now. Yeah, thank you. Okay, ma'am. Okay.